नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। देश में स्वस्थ जगत में एक नया अध्याय आज से जुड़ चुका है। पूरे देश के साथ साथ आज सिलीगुड़ी शहर भी ऐतिहासिक क्षणों का गवाह बना है। स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि पहले चरण के टीकाकरण अभियान में सबसे पहले फ्रंट लाइन वॉरियर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को कोवैक्सीन यानी कि कोविड वैक्सीन दी जाएगी और उसके बाद 50 सालों के उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी और उसके बाद यह प्रक्रिया जोरों से चलती रहेगी। इस बीच दार्जिलिंग जिले में भी यह प्रक्रिया पहले चरण में 5 पॉइंट से शुरू हो चुकी है। दार्जिलिंग जिले के लिए 18,000 टीके आ चुके हैं। आज मैदानी इलाकों में उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और सिलीगुड़ी जिला अस्पताल से वैक्सीन दी जा रही है। पहले हाफ में दार्जिलिंग जिले में लगभग 15,997 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। इस बीच आज सिलीगुड़ी मेडिकल कॉलेज में सबसे पहले डॉक्टर रुद्रनाथ भट्टाचार्य एवं उनकी पत्नी को वैक्सीन दी गई। आपको दिखाते हैं वहां की सीधी तस्वीरें। গুড মর্নিং, হ্যাপি নিউ ইয়ার। কেমন লাগলো কেমন বলেন? খুবই ভালো লেগেছে, বুঝতে পারিনি কিছু। ইনজেকশনটা তো বোঝা যায়নি, খুব ভালো হয়েছে। পুরো প্রোগ্রামটাই খুব সুন্দর হয়েছে। আমি সবাইকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, আমাদের আম জনতা, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, মানে যা এই সমস্ত কার্যকর জন্য যারা এখানে জড়িত তাদের বিশাল হেল্প, আপনাদের প্রচার সব মিলিয়ে আমরা খুব আনন্দিত আজকে যে আমরা নিতে পেরেছি। একজন চিকিৎসক হিসেবে কি বলবেন সাধারণ মানুষের? অসাধারণ কাজ, এবং আমরা সবাই মিলে আশা করছি আমরা প্রত্যেকে এটা পেয়ে যাব। প্রথমে ভ্যাকসিনের জন্য যেরকম প্রোটোকল করা হয়েছে, কারা আগে পাবে কারা একটু পরে পাবে সেই হিসেবেই হবে। হ্যাঁ, যাদের প্রয়োজন। আমার কোনো আতঙ্ক ছিল না। আমরা তো এটা স্যারের কিছু ছিল, স্যারকে জিজ্ঞেস করুন, বলছে কোনো আতঙ্ক ছিল না। আমরা আপনাদের অনেক ধন্যবাদ দিই, আপনারা সবার কাছে এটা তুলে ধরেছেন এবং এটা প্রয়োজনীয়তাটাও সবাইকে বুঝিয়েছেন। শুধু চিকিৎসক দিয়ে হয় না, আপনারাও করেছেন। সেই জন্য আমি আম জনতার কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ এবং আমি আশা করব এই কোভিড থেকে সবাই বাঁচবে এবং পরবর্তীকালেও এই ভ্যাকসিনেশনটা খুব 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 প্রয়োজনীয় এবং লাভজনক হবে। আচ্ছা, যেমন ঘোষিত ছিল বেলা 10:30টার সময় উদ্বোধন হবে, সেভাবেই প্রধানমন্ত্রী ওখানে উদ্বোধন করেছেন। আমাদের কাছে সেরকম নিউজ এসছে। আসার পরেতে আমাদের এখানকার বরিষ্ঠ চিকিৎসক ডক্টর রুদ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রথম ভ্যাকসিনেশনটা এখানে করিয়েছেন, আর তার সঙ্গে আমাদের আরেকজন এক্স প্রিন্সিপাল ডক্টর সঙ্গীতা ভট্টাচার্য। তারপরে আস্তে আস্তে সবাই দিচ্ছে নাকি। টোটাল 100 জনকে দেওয়া হবে, যেটা গভর্নমেন্টের বলা আছে সেই 100 জনকে দেওয়া হবে, সেই হিসেবে ভাগ করা আছে। একটু অভিযোগ আছে কি ডাক্তাররা আজকে কোনো এনগেজড হলো না, ডাক্তাররা কি দিতে চাইছেন, এরকম কোনো সমস্যা রয়েছে? আমাদের কাছে এরকম কোনো খবর নেই। তো আজকে কোনো লিস্টে ডাক্তার নেই? ডাক্তার বই তো আগবাড়িয়ে আসছে। আপনি যদি সারা পশ্চিমবঙ্গের রিপোর্ট আমার কাছে আসছে এক এক করে, তাতে চিকিৎসকরাই প্রথমে এগিয়ে এসছে। হ্যাঁ, মেডিকেল কলেজে বললাম তো, ডক্টর রুদ্রনাথ ভট্টাচার্য তো চিকিৎসক। আপনি কি ভাবছেন সবাই কি একসঙ্গে ঢুকবে? স্টেজ বাই স্টেজ সারাদিন ধরে তো চলবে। লিস্টটা আপনাদের ভুল হচ্ছে জিনিসটা। আজকের লিস্টটা কিন্তু আজকের যে লিস্টটা আছে সেটা সম্পূর্ণ ম্যানুয়াল লিস্ট হচ্ছে, সম্পূর্ণ ম্যানুয়াল লিস্ট হয়েছে আজকে, এবং আমাদের পরিষ্কার বলা আছে যে ওই লিস্টে যাদের নাম থাকবে তাদের ভ্যাকসিনেশনটা নিতে হবে। হ্যাঁ, কারণ আমি তো এসে একজনের জায়গা বন্ধ করে দিতে পারি না, সেটা নিতে হবে। इस बीच सिलीगुड़ी सदर अस्पताल में भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है और आप तस्वीरों के जरिए ये पूरी प्रक्रिया देख सकते हैं।
ভ্যাকসিনেটেড অ্যান্ড আমি সবাইকে জানাতে চাই যে দিস ইজ আ ভেরি সেফ ভ্যাকসিন। আমি নিয়েছি, আমি 8 ঘন্টা বসেছি, এখন বেরোলাম, তো কোনো অসুবিধা কিছু নেই, কোনো প্রবলেম কিছু হচ্ছে না। আশা করি সবাই আপনারা আসবেন আর এই ভ্যাকসিনটাকে অ্যাকসেপ্ট করবেন অ্যান্ড উই উইল প্রমোট টু বি এ কোভিड फ्री वर्ल्ड बाय दिस ईयर। इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 10:30 बजे राष्ट्र को संबोधित करते हुए टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर दी। उन्होंने कहा, भारत में आज से दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण ड्राइव की शुरुआत हो गई है। पीएम मोदी ने वर्चुअल संबोधन के जरिए इस अभियान की शुरुआत की। नमस्कार। आज के दिन का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार रहा है। कितने महीनों से देश के हर घर में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। तो अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है, बहुत कम समय में आ गई है। अब से कुछ ही मिनट बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज वो वैज्ञानिक, वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग विशेष रूप से प्रशंसा के हकदार हैं, जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे थे, दिन रात जुटे थे। न उन्होंने त्योहार देखा है, न उन्होंने दिन देखा है, न उन्होंने रात देखी है। आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं, दो मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। इस बीच उन्होंने कहा कि आज से दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण ड्राइव की शुरुआत हो गई है। पीएम मोदी ने वर्चुअल संबोधन के जरिए कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश में आज दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। अपने संबोधन में उन्होंने वो वैज्ञानिक, वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेक लोग विशेष प्रशंसा के हकदार है, जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे हुए थे। आमतौर पर एक वैक्सीन बनने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन देश में तैयार की गई है। आप सभी को बता दें कि देश में वैक्सीन मेड इन इंडिया के तहत बनाई गई है। लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत के निर्मित भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन टीकाकरण अभियान चला रही है। इस बीच टीका लगाने के बाद दूसरी डोज कब लगेगी, इसकी जानकारी लोगों को दी जाएगी। सभी देशवासियों को ये कोरोना वैक्सीन 2 डोज में लगवानी होगी। ये बेहद जरूरी है। एक डोज के बाद दूसरी डोज लगवाना ना भूले। पहले डोज और दूसरी डोज के बीच 1 महीने का अंतराल रखें। दूसरे डोज लगाने के 2 हफ्ते बाद आपके शरीर में कोरोना के विरुद्ध जरूरी शक्ति विकसित हो जाएगी। इस बीच उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, अलीपुरद्वार में आज पहली चरण की वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो चुकी है। आपको दिखाते हैं वहां की सीधी तस्वीरें।
মাঝখানে একটা ভিডিও কনফারেন্স আছে সেই সময় ভিডিও কনফারেন্স এখান থেকে আমরা পুলিশ ডিপার্টমেন্টের কিছু এসডি অফিসের স্টাফ এনারা আসবেন, নবান্নর সঙ্গে এটা ভিডিও কনফারেন্স হবে 1টা নাগাদ। না চাল কোনটা ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু হয়ে গেছে, ভ্যাকসিন শুরু হয়ে গেছে, 3 জন হয়ে গেছে। আচ্ছা, ভ্যাকসিনেশন প্রথম ফেজে কাদেরকে দেওয়া হচ্ছে? হেলথ স্টাফ, আমাদের এখানকার আমাদের স্টাফ যারা তাদের। তারপরে আগে ওদের কমপ্লিট হবে, এক এক করে 100 জন করে 4 দিন হবে, তারপর যেরকম ডিস্ট্রিক্ট থেকে অ্যাডভাইস হয়। থ্যাংক ইউ স্যার। এতদিন যে একটা আতঙ্ক ছিল গাছে, আপনারা তো যোগটা করার জন্য প্রথম সারি। আসলে সবাই ভয় করছে যে ভ্যাকসিন নিয়ে নিলে কিছু অসুবিধা হবে, কিন্তু সেটা ভয় আমার নেই। না, আমি নিজে করবো, আমাকে দেখার পার্টি নিয়ে নেবে, আর যদি কিছু কার্যকর ঠিক হয় ভ্যাকসিন তো খুব ভালো হয়। এখনো পর্যন্ত 5 জনের দেওয়া হয়ে গেছে, ডিএম সাহেব ছিলেন, আমরাও ছিলাম, ভ্যাকসিন শুরু হয়ে গেছে এবং এখনও পর্যন্ত কোনো আনটোয়ার্ড ইনসিডেন্ট বা সাইড এফেক্ট কিছু পরিলক্ষিত হয়নি। আমাদের এটা চলবে বিকেল 5টা পর্যন্ত। যারা এখানে রেজিস্ট্রেশন করিয়েছেন তাদেরকে পরপর মেডিসিন দেবো এবং সেটা এন্ট্রি করবো। আমাদের মালদা জেলায় 8টা সেন্টার করা হয়েছে। প্রতিটা সেশনে আজকের জন্য 100 জন করে দেওয়া হবে। টোটাল 100 জন আমাদের টার্গেট আছে। আমাদের সমস্ত বন্দোবস্ত করা আছে, অন সাইট এমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট এবং অ্যাটাচড হসপিটাল, মালদা মেডিকেল কলেজ তো নিজেই টার্সিয়ারি হসপিটাল এবং অন্য সেন্টার থেকেও আমাদের ট্র্যাক করা আছে মালদা মেডিকেল সেন্টার। অ্যাম্বুলেন্স থেকে শুরু করে সব আছে, ডাক্তারবাবুরা রয়েছেন। emergency vaccine, therefore emergency medicine, every arrangement is ready. Training has been done. पहाड़ क्षेत्र और सिक्किम राज्य की बात करें तो दार्जिलिंग करशांग में भी पहली चरण की वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो चुकी है। आपको दिखाते हैं वहां की कुछ तस्वीरें। Could you please tell about today's vaccination program, sir? Yes. We are going to start the COVID vaccination program today. Along with the whole of the country, we are also going to hold this program. Yes, sir. Today this program will be held throughout the day up to 5 p.m. and we are expecting to vaccinate 100 healthcare workers today itself. So is there any other special program like video conferencing with the CM? Yes, we have. That is going to be held. The link will be active from 12 noon, and she will observe all of the vaccination centers throughout the state. So what will be the target number of vaccine throughout the Darjeeling district, sir? Today in Darjeeling district there are 6 centers. So today's target is 600 Okay, sir. in Darjeeling district. So that will operate simultaneously, sir? Yes, that will operate simultaneously. So no, sir. In a whole, what is the target number of vaccine for Darjeeling district, sir, as a whole, sir? As a whole for Darjeeling district, it is more than 15,000 in the first phase, Yes, sir. and there will be more phases, of course. This is for the healthcare workers in the government setup, and then there will be private setup. Then there will be other frontline workers, and then high risk general population. These will be the phases. So will the complete population, because the population of Darjeeling is 15 lakh, will
all people will get vaccinated? I have or- just said like the phases. After frontline worker, there will be high risk general people. High risk mean those aged people, hypertensive, diabetic. Those are the high risk people. After that, other general people will be covered. Okay, sir. Who will be the first person to get vaccinated, sir, today, sir, in district hospital? Today we have a list. In the list, we have given time to them, specific time. We have divided them in batches. They will turn up and then we shall open. And if people turn up in right time, I think there are prominent COVID warriors also. We would like to start vaccination with some prominent COVID warrior. पिछले 10-11 महीनों से जिस क्षण का हमें इंतज़ार था वो आज आ गया है और करजोंग सब डिविजनल हॉस्पिटल में आज से वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है। इनिशियली यहाँ पे जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनको हम लोग वैक्सीन लगाएंगे, तो इसके बाद से हम लोग होपफुली वैक्सीन कंटिन्यू कर पाएंगे और सभी को, करजोंग के सभी खरसांग वासियों को हम लोग वैक्सीन दे पाएंगे, इसी की मैं आशा करता हूँ। और बस आज के इस दिन पे मैं यही बोलना चाहूँगा कि वैक्सीन आ गया है बट स्टिल हमें सारी प्रिकॉशंस अभी भी लेनी है। हमें मास्क अभी भी पहनना है, हमें 2 गज की दूरी अभी भी रखनी है और जैसा कि जो फेमस सेंटेंस है, दवाई भी कड़ाई भी, तो हमें इस चीज़ का पालन करना है। हमें अभी रिलैक्स नहीं होना है। जब तक इस कोविड को हम पूरी तरीके से हरा नहीं देते हैं तब तक हमें मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करना ही है। सिक्किम राज्य की बात करें तो सिक्किम में पहले चरण के वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए 16,400 वैक्सीन राज्य में पहुंची है। इस बीच सिक्किम के STNM अस्पताल और गेजिंग अस्पताल में भी पहली चरण की वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो चुकी है और आपको सीधा दिखाते हैं वहां की कुछ तस्वीरें। चिफ मेडिकल अफिसर गेजिङ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल। हाम्रो जुन चाहिँ आज यो कोभिड भ्याक्सिनको लन्चिङ भइरहेको छ, हाम्रो स्टेटमा STNM अस्पताल र गेजिङ डिस्ट्रिक्ट अस्पतालले यो मौका हामीले पाएको छौँ र आज हामीले यहाँ
हाम्रो चिफ गेस्ट सर एल नेपाल सरलाई हामीले बोलाएर यहाँ हामीले उद्घाटन गऱ्यौँ र आज हाम्रोमा 38जना बेनिफिसियरिज छ जसलाई आज हामीले भ्याक्सिन लगाउनेछौँ। सो 38जनामा चाहिँ 38 आउट अफ 38 हाम्रोमा डक्टर्सहरूले भलिन्टियर गर्नुभएको छ, नर्सेसहरूले भलिन्टियर गर्नुभएको छ, सफाई कर्मचारी, ड्राइभर्स, वाटर टेन्डेन्ट्स, ओटी टेक्निसियन्स र हाम्रो आशा बहिनीहरूले पनि हामीलाई यहाँनिर उहाँहरूले चाहिँ यहाँनिर आज कोभिड भ्याक्सिन लाउन आउनुभएको छ। भारतका वैज्ञानिकले भनौँ यो एउटा इतिहासलाई कायम गरेको छ, इतिहास लेखेको छ। विश्वमा जुन कोरोना भाइरसको प्रकोपले गर्दाखेरि लाखौँ मान्छेको मृत्यु भइरहेको छ, त्यसै बिचमा हाम्रो भारतका साइन्टिस्टहरूले जुन कोरोना भ्याक्सिन स्थापित गरेका छन् यसलाई रिसर्च गरेर बनाइएको छ अनि भारतका सम्माननीय प्रधानमन्त्री महोदयले आज यसको विधिवत रूपमा यसलाई सुरु गरिसक्नु भएको छ। अघि नै हामीले उहाँहरूसँग सहभागी बस्यौँ र यसले म सम्पूर्ण सिक्किमे जनतालाई अनि भारतवासीलाई नै म सरकारको तर्फबाट, सिक्किम सरकारका सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको तर्फबाट म धेरै साइन्टिस्टहरूलाई जसले पनि मेहनत गरेर रात दिन गरेर यो भ्याक्सिन बनाउनको लागि उहाँहरूले जोड दिनुभयो अनि यो विश्वमा नै पहिलो भ्याक्सिन भारतले आविष्कार गरेर आजदेखि सुरु गर्ने जुन पहल भएको छ यो ऐतिहासिक कुरा भएको छ र यसमा म सबभन्दा पहिला सम्पूर्ण खट्ने ती साइन्टिस्टहरूलाई सबैलाई म धेरै बधाई दिन चाहन्छु सरकारको तर्फबाट। त्यसै गरेर हाम्रो सिक्किममा सबैजना जति पनि हाम्रो डक्टर्स, नर्सेसहरू, जो पनि फ्रन्टलाइन वरियर्सहरू यो कोरोना भाइरसको लागि आफ्नो जीवन बलिदान गरेर उहाँहरूले खटेर आजसम्म यो बिमारको लागि लड्नलाई, सुरक्षा गर्नको लागि सहयोग पुर्याउनु भयो, यसको लागि पनि म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै जुन भ्याक्सिन आजदेखि सुरु भएको छ हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले गान्तोकबाट अनि यसरी हामी यहाँ पश्चिम सिक्किमको गेजिङको हस्पिटलबाट हामी यसरी सबैजना मिलेर आज यसलाई विधिवत यहाँ पनि सुरु गरिएको छ। यसले सारा सिक्किमे जनतालाई अवश्य पनि फाइदा पुग्नेछ। तरै भए पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु सबै जनता जनार्दनलाई यो भ्याक्सिन भएको छ अनि यसलाई पहिलो डोज लगाएर पनि अझै 28 दिन 1 महिना लगभग पर्खेर फेरि अर्को डोज लगाएर त्यसको बादमा मात्र यसले रिएक्सन गर्ने, यसले काम गर्ने भएकोले गर्दाखेरि हामीले जुन मास्क लाउने छ, दूरी कायम गर्ने कुरा छ, साफ सुग्घर बस्नुपर्ने कुराहरू छ, यी कुरा सबैलाई ध्यानमा दिएर हामीले कन्टिन्यू यसलाई फलो गरौँ, पालन गरौँ अनि जुन यो भ्याक्सिन छ अवश्य नै यसले सबै अब हामीले डराएर फेरि पनि केही भइहाल्यो भने पनि यो भ्याक्सिनले हामीलाई सुरक्षा गर्नेछ भनेर हामी सबैजना विश्वस्त छौँ। अवश्य सिक्किमे जनताले यहाँबाट यो कोरोना भाइरसको महामारीबाट यसबाट हामीले छुटकारा पाउनेछौँ भन्ने आशा राख्दै म सम्पूर्ण गेजिङमा एमइओ, सिएमओ म्याडम, डिसी साहबदेखि लिएर सबै डक्टर्सहरू जति नर्सेसहरू हुनुहुन्छ सबैलाई एकपल्ट यो भ्याक्सिन अब यहाँ सुरु भएछ आजदेखि नै फ्रन्टलाइन वरियर्सलाई हाम्रो डक्टर्स, नर्सेसहरूले यसलाई टीकाकरण सुरु भएको छ र उहाँहरूको लागि हामी ईश्वरसँग प्रार्थना पनि गर्छौँ अवश्य यसले फाइदा मिलोस्, सबैको जीवनमा यसले सफलता ल्याओस् अनि यो महामारीबाट हामी सिक्किमे जनता, सबै विश्वकै जनता बाँच्न सकौँ किनभने भारतले आविष्कार गरेको कुरा हो र यो भारतले आविष्कार गरेर सारा विश्वले यो टीकाकरणलाई प्रयोग गर्नेछन् भने एउटा इतिहासमा सबभन्दा ठुलो आविष्कार जुन भारतले गरेको छ यो एउटा मान्य छ अनि यसलाई हामी सर्वोपरि गरेर अगाडि यसको लागि हामी काम गर्नेछौँ र विशेष गरेर म गेजिङ हस्पिटलको सम्पूर्ण परिवारलाई पनि बधाई दिँदै अब उसो पनि राम्रोसँग यसलाई टीकाकरण गरेर हाम्रो बिमारीहरू जो पनि यसबाट सङ्क्रमित हुन्छन् उहाँहरूको सुरक्षा हुनेछ भनेर म आशा राख्दै म बधाईसँग धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम लोगों से कहा है कोरोना वैक्सीन आने के बाद भी मास्क और 2 गज की दूरी अपनानी है। अब देश को नया प्रण लेना होगा, दवाई भी और कड़ाई भी। यह नहीं होगा, कड़ाई को कराई बोल दे। इस बीच देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कोरोना वैक्सीन आने के बाद भी मास्क और 2 गज की दूरी अपनानी है। अब देश को नया प्रण लेना है, दवाई भी और कड़ाई भी। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और देखते रहे एसके लाइव। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम
घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप स्टिमोल। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात. Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today.